Mr. Maninder Chandok, who is going to moderate this session. Then the other members of the Lions Club who have joined today for this very valuable session, which is for the safety of our life. And then the doctors who have taken out time from the, very busy schedule to address a situation which is now more than a pandemic, is just entering into our households. I'm in order. I very renowned Dr. Jawar Biani, Dr. Sadhna Sudani ji, and of course Dr. Saurabh Malviya. You know, these are the people who have been working day and day, night and night for us. And we always call them Corona warriors. So I would request the Millennium team to give them a round of applause for wherever they are. These are the true Corona warriors who have fought the battle for us with a lot of, not even looking at day or night. And, their lives were at risk, but they went on fighting for us, and still the fight is not over, and they are still fighting for us. Now it is our turn to give it back to them. And how we are going to give it back to them today, we are going to learn by keeping ourselves safe. Last time when we had meetings with the parents, I had told the parents that don't venture out, don't go out, keep yourself at home and be safe. But now we have to go out. This is the unlock one. So unlocking the COVID-19 is going to be in our hands now. So this initiative, when we decided that schools are the best thing to be, connected with, because they would be the last thing to open up. I am sure the schools will be the last thing which will open up. But before that, before we venture into the schools, we have to keep ourselves safe at home, outside, in the public, everywhere. Unlocking doesn't mean that COVID is gone. No, it has come closer to us. And now we are going to protect ourselves from this disease. Today we're going to learn. And all my children, I am sure they're very intelligent children. I welcome all the parents. I can, see already more than 100 I have already joined in. There are many more which will be joining in now. It's a Sunday afternoon and it's a lunch time, but I think this is an important talk. So thank you parents for joining us for this session. And once again, from the bottom of my heart, I would like to thank the Lions Club team, for taking these initiatives. Before, I hand it over back to Maninder sir, I would tell you that Lions Club has done a remarkable work in this COVID. I've been hearing such, my husband is a Lion member, I'm a Lion member, and without even caring for their own lives, whether it is distributing kits, getting ventilators, distributing things on the ring road, and buying masks, they have done, I think, more than what I could make out of from some of the talks. More than 6 crore worth of work has been done by the Lions Club Indore district, the three districts even, which is organizing this conference. It's amazing, NGO, a social work, not only doing such an amazing work amidst the pandemic, and also now taking an initiative to actually, sensitize the parents, the children, and the society. Because somebody has to take an initiative to tell us, ki, please do this, please don't do that. Because as I was just saying, हमको सबको पता था कि हमको ये नहीं करना है, लेकिन अभी हमें नहीं पता है हमें क्या करना है. तो आज हम वो सब चीजें जानेंगे कि अब हमको आगे क्या करना है कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके. Thank you, sir. Thank you, the district governor, Lion Ajay Singh Ji Sengar, for accepting this call from the Millennium School, for organizing this for us. And thank you, sir, for moderating it, Maninder sir, for us. And I cannot thank enough all the 3 doctors who have taken out time for doing this for our parents and children. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. We are truly grateful. And thank you parents for joining in. Thank you.
मेरी आवाज शायद बीच में कुछ गड़बड़ हो रही थी, यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। ये ऑन नहीं हो रहा था। मेरी आवाज आपको अब आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं उस समय ये बता रहा था कि थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल मैडम, आपने बहुत अच्छी तरह से हम सब लोगों को ये बताया कि आज की क्या नीड है हमारी यहाँ पर इस मीटिंग की, और इस मीटिंग के करने से हम उस चीज को जानेंगे कि हम किस तरह से इस बीमारी से बच सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस वर्ड्स यू हैव टोल्ड अबाउट लायनिज्म एंड लायंस क्लब। मैं अब ऐसे व्यक्ति को आपके सामने बुलाऊंगा जो कि लायंस क्लब के चीफ हैं। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है वो सबसे टॉप पोजीशन पे होता है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे हैं लायन अजय सिंह सेंगर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले 2-2.5 महीने में शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब उसने कोई ना कोई सेवा गतिविधि, कोई ना कोई सेवा कार्य कोरोना के काल के चलते किया हो। मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को, लायन अजय सिंह सेंगर को आपके सामने बुलाता हूं, और मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। बोलिए सर। नमस्कार चंडोक जी, मेरी आवाज आ रही है? चंडोक जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। सभी को एज ए लायन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आप सभी को नमस्कार। आपका शायद इंटरनेट काम नहीं कर रहा सर, आपका शायद। बहुत डायनामिक। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जीवन के साथ क्लब होकर मिलेनियम स्कूल के माध्यम से जो आज विश्व की सबसे बड़ी आपदा है कोरोना के साथ हमें कैसे जीना है, इस विषय पर यह वेबिनार रखा। मनिंदर जी अभी मेरे बारे में कुछ बातें कह रहे थे, मेरी तारीफें कर रहे थे, और मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैंने पिछले 3 महीने में समाज में लायंस क्लब के बैनर तले कुछ किया है तो मैंने सिर्फ लायंस क्लब के एक सिपाही के नाते किया है, क्योंकि मैं लायंस डिस्ट्रिक्ट के 5000 लायंस सदस्यों का प्रतिनिधि हूँ, उनका सिपाही हूँ। उनके सेवा की जो भावना थी, उन सेवा के भाव को लेकर मैं समाज में काम करता रहा, और वो कोई मेरे लिए बधाई के पात्र मेरे शब्द नहीं होना चाहिए कि मुझे जो ताकत दी, हिम्मत दी, वो लायंस क्लब के सभी सदस्यों ने दी। इसलिए मैं उनका वंदन करता हूँ, उन्हें सैल्यूट करता हूँ। जैसा कि आज सब्जेक्ट है कि कोरोना के साथ हमें भविष्य में जीना है, कल आईएमए के साथ हमारा एक वेबिनार संपन्न हुआ था जो हमारी सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट डॉक्टर साधना सुडानी जी के माध्यम से संपन्न हुआ। उसमें हमारे शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स हिस्सेदारी कर रहे थे, और आज भी डॉक्टर सौरव मालवी जो लाइन मेंबर है, हमारे गुरु, मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर जवाहर मियानी जी इस संबंध में बोलना चाहेंगे। हम रोज पिछले 3 महीने से टीवी पर, समाचार पत्रों में बहुत सारी बातें पढ़ रहे हैं। मैं भी मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूं, और मेरा मानना है कि कोरोना आपदा एक भयावह आपदा के रूप में आया जरूर था। इसने पूरे विश्व को हिला दिया, मेडिकल साइंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। पर कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मैं मानता हूं कि कोई संकट आता है तो उसके बाद का अगर हम जीवन देखें तो वो बेहतर होता है। पर हम मान लें कि हमें कोरोना संकट के साथ जीना है। हम लोग, जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए, हम लोग सोचते हैं कि कोरोना वायरस का अटैक सिर्फ उन लोगों पर हुआ, पर शायद सौरभ जी अभी लाइन पर होंगे, वो मेरी बात सुन रहे होंगे। जवाहर मियानी जी, डॉक्टर साधना सुडानी जी अभी लाइन पर हैं। मेरी मान्यता है कि विश्व में जितने भी लोग हैं, कोरोना वायरस ने हर व्यक्ति पर अटैक किया, पर जिसकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी वो उस वायरस के अटैक को झेला, और कोरोना वायरस उसकी बॉडी में घूम फिर कर वापस चला गया।
अब जो आने वाला जीवन है, आने वाला समय है, उसके लिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, हमें कोरोना के साथ ही जीना है। बहुत सारी जीवन में, सांसारिक जीवन में बातें होती हैं जिनका हम पालन करते हैं। सुबह किस तरह उठना, किस तरह काम करना, इसी तरह हमें हमारे जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि आज कोरोना वायरस के साथ जीना है। तो हमें कोरोना से बचने की बहुत सारी बातों का, जो डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सक हमें दिशा निर्देश देते हैं, उनका पालन करना। हमारा हिंदुस्तान भीड़ का देश है। जैसे ही शासन प्रशासन ने कोरोना से छूट दी, तो सब्जी के ठेले पर जाके 50 लोग एक साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाते हैं। ये गलत। डॉक्टर्स अपना उपाय करेंगे, मेडिकल साइंस अपना काम करेगा, पर हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीवन जीने का आधार हमें बचाना होगा, क्योंकि जीवन हमें बचाना है अपना। डॉक्टर्स के पास हम जाएंगे जब बीमार हो जाएंगे, हम बीमार होंगे। हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बहुत सारी बचत हमें करना होता है। पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही शासकीय प्रशासकीय छूटें मिली, तो मिठाई की दुकान पर लाइन लगी हुई है, फल की दुकान पर धक्का मुक्की हो रही। क्या सब्जियां, क्या फल भाग जाएंगे, क्या बैंक भाग जाएगी? हम, जीवन हमारा है, जीवन की रक्षा हमें करना है। आज सौरभ मालवीय जी, जवाहर बयानी जी आपको दिशा निर्देश देंगे किस तरह से हम अपने शरीर की और स्वास्थ्य की रक्षा करें। दूसरा, जो लाइन सदस्य, जो टीचर्स, मिलेनियम स्कूल के बच्चे जुड़े हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा जब भी लायंस क्लब की सभाओं में गया हूं, लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम फास्ट फूड से बचें। आज उनका व्यवसाय है, पिज्जा हट, एमरजेंसी, तरह की संस्थाएं हैं, वो पालन करेंगी। पर हमने इन 3 महीने में भी घरों का खान पान खाया है, तो हमारा वजन कम हुआ, हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है, नदियां साफ हुई है। हम आने वाले 6 महीने, 8 महीने और बाजारी सामान से दूर रहें, पिज्जा से दूर रहे, बर्गर से दूर रहे, होटलों के खानों से दूर रहे। किन किन हाथों में होकर वो चीज हमारे पास पहुंचती है। बच्चों से विशेष रूप से, क्योंकि शायद मैं मानता हूँ संगीता जी ने बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी इस वेबिनार से जोड़ा हो। मेरा रिक्वेस्ट है, हम जहां भी रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, दोस्तों, सबको प्रेरित करें कि हमें कोरोना से बचने में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का किस तरह उपयोग। एक भीड़ चली, लोगों के अंदर मैसेज चला कि N95 मास्क सबसे अच्छा होता है। मास्क हमने लगा लिया, 1 महीने से हमने वही मास्क लगाया हुआ है, उसको धोया ही नहीं है, उस मास्क को लगा के हम कहीं भी घूम रहे हैं। कल बड़ा अच्छा लगा सौरभ जी से, मैं सौरभ जी के प्रति धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मास्क के प्रति भी जागरूकता पैदा की। बहुत बार से पैसे वाले लोगों को एक गलतफहमी हो गई कि हमने N95 मास्क लगा लिया है, उससे हम बच जाएंगे। हमें चिकित्सकों की सलाह पर पालन करना है। चिकित्सक हमें सलाह दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, पर पालन हमें करना है। जीवन हमारा है, हम बच कर रहे। मैं एक कंट्री का उदाहरण देता हूँ, अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने देश में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आपको कोरोना से बचना है तो आप जानो आप किस तरह बच सकते हो। दोस्तों, मेरा अनुरोध है, हम सौरभ जी को सुने, डॉक्टर जवाहर बयानी जी को सुने, साधना जी को सुने, और हम कोरोना से बचने के लिए सूत्रों को खुद अंगीकार करें। सुबह व्यायाम करें, योगा करें, अच्छा खान पान करें, लोगों की भीड़ में हम शामिल नहीं हो। 3 महीने हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने घरों में निकाले हैं। हम लायन सदस्य, लायन लीडर, हमारे लिए सेवा के स्वरूप बदले हैं। हम आज सेवा सर्विस के क्षेत्र में मोटिवेटर के रूप में हम समाज में काम कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, शायद इंटरनेट काम नहीं कर रहा है आपका।
आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है शायद। एनीवे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे हमारे गवर्नर साहब, पर शायद वहाँ का इंटरनेट कुछ काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए उनकी बात को हम पूरा नहीं सुन पाए। गवर्नर साहब, यदि आपके यहाँ इंटरनेट चालू हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं? नहीं। तो मित्रों, ये थे हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन अजय सिंह सेंगर। शायद किसी तकनीकी परेशानी से अपनी बात वो पूरी नहीं कर पाए, कोशिश कर रहे थे वो। और अब मैं आपके सामने बुलाऊंगा, आज की जो ये मीटिंग हो रही है, सिर्फ हमारा कहना यही है कि आपको सबको बहुत ध्यान से इसको सुनना है कि किस तरह से हमारे डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स आर द अथॉरिटी, हमारे डॉक्टर्स किस तरह से बताएंगे कि हमको क्या प्रिवेंशन करना है और क्या हमारे लिए प्रिकॉशंस हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि हमारा अभी का समय निकल गया, हम घर में थे, वो समय हमारा जो भी था, पर अब जब हम बाहर आएंगे, हमें अपने अपने कार्यों के लिए अपने घरों से बाहर आना पड़ेगा। हमें कभी कभी स्कूल भी आना पड़ेगा, हमें बाजार जाना है, हमें अपने कामों में अपने ऑफिस जाना है। तो किस तरह से हम प्रिकॉशन लें, किस तरह से हम अपने आप को व्यवस्थित रखें, जिससे कि हम भी इस इन्फेक्शन से बचे रहें और दूसरों को भी इस इन्फेक्शन से बचाने में मदद करें। तो अब मैं बुलाता हूं हमारे पहले डॉक्टर सौरभ जी, यदि आप आ गए हों तो। डॉक्टर सौरभ मालवीय। डॉक्टर सौरभ मालवीय यदि हमारे बीच में हो तो मैं उनको अनम्यूट करूं। शायद सौरभ जी, साधना जी आप पहले अपना सेशन ले लें, फिर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। साधना जी, शायद सौरभ जी भी शायद जुड़े नहीं हैं। जी जी। सभी जी को साधना जी बोलिए। सभी को नमस्कार। अभी हम जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो हमें नमस्ते ही करना है, जो कि हम पहले भी करते थे। अभी हाथ नहीं मिलाना है हमको, गले भी नहीं लगना है, तो क्या हुआ, फिर भी हम सोशली एक दूसरे से मिल सकते हैं, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो भी नमस्कार के रूप में होता है। उससे हम क्या कर होता है कि सामने के जो मनुष्य जिसको हम नमस्कार करते हैं, उसके अंदर की आत्मा को हम नमन करते हैं, और उससे हमारे मन में एक अच्छी भावना आती है जो हमें बीमारी से लड़ने में भी मदद करती है। तो मेरा ये कहना है कि पहला लेक्चर मेरा है, उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी डरने की बात नहीं है, हमें पॉजिटिव रहना है। लॉकडाउन हमको क्यों मिला? जब हम बचपन में कोई शरारत करते थे तो हमारे माता पिता, पेरेंट्स भी हमें लॉकडाउन कर देते थे, ताला बंद कर देते थे, क्योंकि हमने कुछ गलती करी होती थी और हम उस गलती का सुधार करते हैं और धीरे धीरे फिर अनलॉक होते हैं। वैसे ही अब हमारे साथ हो रहा है। हमने लॉकडाउन में अपने आप को परखा कि हमने क्या गलतियां करी और उसको हमने निखारा भी। तो अब हम जब बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो सब अच्छा होता जा रहा है, प्रकृति अच्छी हो रही है, जानवर खुश हैं, सभी लोग खुश हैं, और हमारी भी सेहत में निखार आया है, क्योंकि फिजिकली हमने रेस्ट किया है, मेंटली हम पर्टर्ब्ड नहीं रहे, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हुआ, हमारी हार्ट रेट कम हुई, और हमारे रिश्ते अच्छे हुए, और हम और स्वस्थ हुए। तो इस बीमारी जो हम कोरोना बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टाइप 2, और इसको शॉर्ट में कोविड-19 कहते हैं, बिकॉज ये 19 में 2019 में शुरू हुआ था, तो उसका शॉर्ट फॉर्म कोविड-19 है। इस बीमारी से अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, और ज्यादातर लोगों को मालूम है कि ये बीमारी क्यों होती है। ये एक वायरस के द्वारा होती है, जो एक बहुत ही छोटा वायरस है, जो हमें दिखता नहीं है, परंतु बहुत सारी चीजें इसने हमारे शरीर में कर दी हैं, और सारी दुनिया को एक साथ इसने अफेक्ट किया है। मतलब हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग मान रहे थे, मनुष्य अपने आप को बहुत स्ट्रांग मान रहा था, पर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग कोई हो सकता है। तो अब हमको इससे कैसे लड़ना है? तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि ये वायरस क्या होता है और ये हमारे शरीर में कैसे अंदर पहुंचता है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है,
और ये रेस्पिरेटरी रूट से अंदर पहुंचता है। तो ये हमारे नाक, आंख और मुंह इसके द्वारा अंदर पहुंचता है। इसीलिए बार बार आपको हाथ धोने का कहा जाता है कि आप बार बार अपनी हैंड वॉशिंग करें, मास्क लगाएं और आंखों को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि आंखों की म्यूकोजा से भी पहुंच रहा है। ये नई रिसर्च में भी आया है कि आंखों को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये आंखों के द्वारा भी अंदर जा सकता है। जैसे बच्चों में कई बार आदत होती है, बार बार आंखों को मसलते हैं और उनको टच करते हैं, तो वो भी नहीं करना है। हाथ धोना इसीलिए बार बार आता है कि हाथ जब हम कहीं भी टच करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको फोमाइट्स कहते हैं। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे टेबल है, सीढ़ियों की रेलिंग है, या लिफ्ट का दरवाजा है, या स्विचेस हैं, उसमें भी ये वायरस कुछ दिनों तक रह जाता है। तो यदि हम उस दरवाजे या किसी चीज को टच करते हैं और उसके बाद अपने मुंह को या नाक को या आंख को टच करते हैं, तो ये वायरस फिर अंदर हमारे शरीर में चला जाता है। इसलिए बार बार हाथ धोने की बात आती है, जो डॉक्टर सौरभ मालवीय आपको डिटेल में बताएंगे कि इसको क्यों करना चाहिए। फिर इसके बाद होता है कि यदि ये वायरस अंदर चला गया तो ये हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण देता है, यानी क्या क्या सिम्टम्स होंगे, और आपको मालूम पड़ेगा कि ये इन्फेक्शन हमें हो रहा है। 80% पॉपुलेशन जो होती है उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो अभी बहुत अच्छी बात है। और भारत में भी यही हो रहा है कि हमारे ज्यादातर जो मरीज हैं उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और वो नॉर्मली उस इन्फेक्शन से भी निकल जाते हैं। तो कुछ अच्छी भी बात है इसमें कि हमें बीमारी नहीं हो रही है, पर एक अच्छी बात ये नहीं है कि यह इन्फेक्शन हम दूसरों को भी फैला सकते हैं, क्योंकि हमारे गले में, हमारी नाक में वायरस है। तो यदि हमारे पास कोई करीब में खड़ा है और हम जोर से बात कर रहे हैं, या हमें छींक आई या हमें खांसी आई और हमने सोशल एटिकेट्स नहीं रखे या कफ एटिकेट्स नहीं रखे, तो ये वायरस हवा के द्वारा सामने वाले के रेस्पिरेशन पे या तो डायरेक्ट पहुंचेगा या फोमाइट्स पर गिर जाएगा, जो आसपास हमारी वस्तुएं उस पर गिर जाएगा। तो ये हम दूसरे को इन्फेक्शन कर देते हैं। और यदि हमको सिम्टम्स आते हैं या किसी मरीज में सिम्टम्स आते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो सिम्टम्स है वो है फीवर, यानी बुखार। बुखार बहुत सारी बीमारियों में आता है, पर आजकल जो बुखार आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोविड-19 ही है, क्योंकि बुखार जो है तेज बुखार आ जाता है, कभी कभी चिल्स देकर भी आ जाता है। तो 99% पेशेंट्स को बुखार आता है। तो जब भी किसी मरीज को आपके घर में या किसी सदस्य को या आसपास या आपकी बाई को या स्कूल में किसी बच्चे को बुखार आता है, तो आप उसको लाइटली ना लें, क्योंकि यह बुखार कोरोना का लक्षण हो सकता है, पर यह कोरोना नहीं है। तो आपको ओनली विजिलेंट होना है, डरना नहीं है। फिर दूसरा इसका लक्षण होता है कफ। कफ और बुखार यदि दोनों आते हैं तो 99% चांसेस होते हैं, और कफ अकेला है तो 60% जो पेशेंट्स हैं उनको कफ होती है। तो कफ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है इस बीमारी का। जनरली ड्राई कफ होती है, यानी सूखी खांसी, जैसे गले में खराश हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, कभी कभी चेस्ट पेन जैसे लक्षण भी होने लगते हैं, वो हो रहा है, और खांसी आती है। और खांसी और बुखार यदि 3-4 दिन तक आपको आ रहे हैं और कोई बीमारी दवाइयों से नॉर्मली इतने अच्छे नहीं हो रहे, तो हमें कोविड की मतलब अंदेशा होता है कि ये कोविड, इट मे बी पॉसिबल कि इट मे बी है कॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे फटीक होती है, मतलब थकान थकान होती है, और भूख नहीं लगती है। तो भूख नहीं लगना भी अच्छा लक्षण नहीं है। किसी किसी मरीज को सांस, ये सूंघने की क्षमता, लॉस ऑफ दिस स्मेल कम हो जाती है, मतलब स्मेल नहीं आती है। ऐसे लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, मतलब कोई खाते हैं तो जैसे बोलते हैं ना, कड़वा मुंह हो गया, टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो ये भी हो जाता है। तो ये लक्षण भी कोरोना के हो सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट और सीवियर लक्षण कोरोना का ये है जब सांस लेने में परेशानी आने लगे। तो जैसे खांसी और बुखार के साथ साथ जैसे ऐसा लगने लगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, मतलब हमें ऑक्सीजन के लिए कोशिश करनी पड़ रही है कि ऑक्सीजन कम मिल रही है, तेज तेज से सांस होने लग रही है। तो जो ये हाइपोक्सिया इसको कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। और 60 से 70% जो मरीज होते हैं ये सीवियरिटी पे तभी जाते हैं जब उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कोविड के लिए इसको हैप्पी हाइपोक्सिया भी कहा जाता है, कि अचानक से मरीज ठीक था
और अचानक से उसको ना डिस्निया होने लगा और सांसों में तकलीफ होने लगी। तो इसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहा जाता है कि अभी अभी मरीज था अच्छा और उसको ऑक्सीजन की कमी हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई और एक सीधा वेंटिलेटर पे ही चला गया। पर यदि हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसको थोड़ा बुखार आ रहा था, उसको थोड़ी थोड़ी खांसी थी, उसके घर पर कोई मरीज कोविड का या खांसी का था पर उसने केयर नहीं करी। मतलब आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी से जल्दी अपने हेल्थ केयर वर्कर को इन्फॉर्म करना है और अपनी केयर करनी है। मतलब जैसे अच्छे से रेस्ट करें, आप अपने आप को आइसोलेट रख के रखें, पानी ज्यादा करके पिए, तो काफी बीमारी तो इससे ही ठीक हो जाती है। जब हम अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं, जब हम बेड रेस्ट करते हैं, अपने आप को टेंस नहीं करते हैं, अपने आप को थोड़ा खुश रखते हैं, कूल डाउन रखते हैं, सहज रखते हैं, तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ये बीमारी अपने आप भी ठीक होने लगती है, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन कम है उसके पास, तो आपको कम यूज करना है, तो इस तरह से वो ठीक होने लगती है। परंतु कई कई मरीज ऐसे होते हैं उनको बहुत एंजाइटी होने लगती है, तो वो तेज तेज सांस लेने लगते हैं, घबराहट हो जाती है और बुखार आया कि वो बोलते हैं, जैसे एक हमारे लायंस क्लब के ही मेंबर है, उनकी बेटी है, उसको बार बार रोज ही एक दिन की खबर आती, फिर बोलती है उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिर उसका जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीमीटर भी लगाया, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सेचुरेशन अच्छा आ रहा था, सब कुछ अच्छा आ रहा, फिर वो मोबाइल पर यूट्यूब पे कोई ना कोई चीजें देखती रहती है, कुछ ज्यादा पढ़ लेती है, समझ लेती है, फिर वो बोलती है, तो इसका मतलब है उसको एंजाइटी है। तो अभी अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मरीजों में फिजिकल चेंजेस से ज्यादा मेंटल चेंजेस होने लगे हैं, क्योंकि उन्हें एंजाइटी बहुत हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोविड हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस बीमारी से मेरी डेथ हो जाए, या मैं अस्पताल पहुंच जाऊं, या किसी लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि मुझे कोविड हो गया है, क्योंकि एक ये सोशल प्रॉब्लम भी आ गई है कि हम किसी को मालूम ना पड़े कि मुझे कोविड हो गया है। इसके डर से कुछ ये मानसिक रोग भी ज्यादा होने लगे हैं। आज मैं एक साइकेट्रिस्ट का भी लेक्चर अच्छे से देख रही थी, तो वो बता रहे थे कि वैसे ही भारत में 7 में से 1 मरीज को मेंटल प्रॉब्लम होती है, और कोरोना के होने के बाद ये और डबल हो गई है। मतलब हर तीसरा या चौथा मरीज कभी बोल रहा है हेडेक हो रहा है, कभी उसको एंजाइटी हो रही है, कभी उसको डिप्रेशन आने लगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये प्रॉब्लम भी हो रही है। पर ये प्रॉब्लम से भी हमें बचना रहेगा। कैसे? हम एक दूसरे से बातें करते रहें, एक दूसरे से हर बात शेयर करें, डॉक्टर से अपनी बात करें, अपने बड़े लोगों से बात करें। मतलब एक्चुअली हमें अपने आप को शेयर करना है, खोलना है, अपने आप को बंद नहीं करना है कि हम अपनी बातों को छुपाएं, और अपनी बातों को बोलने से ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये मेंटल प्रॉब्लम भी है। हम आपके साथ यदि बच्चे भी हैं, कोई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप माता पिता ये भी ध्यान रखें पेरेंट्स की, बच्चों पर भी प्रेशर ज्यादा ना डालें, क्योंकि बच्चों को अभी हमें प्रेशर डालने का वक्त नहीं है। उनको हमें रिलैक्स रखना है, खुश रखना है, उनसे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। वो फिजिकली अपने खुश रहें, अपनी अच्छी डाइट लें, घर की डाइट लें, अपनी बातें आपसे शेयर करें और अपनी सेहत को अच्छा रखें, वो बेहतर कर पाएंगे। स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़े रुक भी गए तो हमारी शक्ति हम एकत्रित कर रहे हैं, उसके बाद हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, तो कोई चिंता नहीं है। तो वो ये है। और बाकी ऑक्सीजन की कमी भी होती रहती है, लॉस ऑफ वेट टेस्ट मैंने बता दिया। कभी कभी किसी पेशेंट को नॉशिया, वोमिटिंग और डायरिया भी हो रहा है, GI सिम्टम्स भी हो रहे हैं, हेडेक भी हो रहा है, मतलब वेरिड सिम्टम्स आ रहे हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से बात कर रही हूँ तो वो बता रहे हैं कंजंक्टिवाइटिस भी हो रही है, मतलब आंखें भी आ रही हैं वायरल से, इससे। तो यानी यह वायरस हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी इफेक्ट कर सकता है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम अपनी जल्दी से डॉक्टर को दिखाएं, अपने हेल्थ केयर सिस्टम से अपनी सहायता लें और इस बीमारी से बचने की और ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। तो फिजिकल प्रॉब्लम है और मेंटल प्रॉब्लम है। उसके बाद होता है कि हम इस बीमारी को जानने के क्या क्या उपाय हैं। एक तो जो थर्मल गन होती है, टेम्परेचर लिया जाता है, वो तो लेते ही हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजनेशन देखा जाता है बॉडी का कि ऑक्सीजन भरपूर है कि नहीं है। 96% से कम ऑक्सीजन है तो थोड़ी संभावना रहती है कि वहां पर ऑक्सीजन दिया जाता है। फिर कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी हैं जो करवाए जाते हैं, और जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर डॉक्टर इसकी एडवाइस करता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसको हम नेजोफेरेंजियल स्वाब के द्वारा लिया जाता है। उसमें वायरस की क्वांटिटी देखी जाती है, वायरल लोड टेस्ट किया जाता है।
तो इसमें क्या करते हैं कि अपने नेजोफेरेंजियल स्वाब लिया जाता है जो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर लेते हैं, और उन्हीं पेशेंट का लेते हैं जहां पर ज्यादा सिम्टम्स हो, जहां पर ज्यादा लग रहा है कि इसको संभावना आने की ज्यादा हो। परंतु जहां पर माइल्ड सिम्टम्स हैं या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, वहां पर नहीं भी लिया जाता। तो कभी आप लोग चिंता ना करें, जैसे कि कभी भी किसी के यहाँ एक भी पेशेंट पॉजिटिव आता है तो फोन आने जल्दी से शुरू हो जाते हैं कि हमारी टेस्टिंग तो ली नहीं गई, हमारी टेस्टिंग तो ली नहीं गई। पर सभी की टेस्टिंग नहीं ली जा रही है, क्योंकि टेस्टिंग में टाइम भी बहुत लगता है और ये कॉस्टली है, और मेन पावर का भी बहुत उपयोग होता है। तो जिनको जरूरत होती है उनकी टेस्टिंग ली जाती है, नेजोफेरेंजियल स्वाब के द्वारा ली जाती है, और RT-PCR के द्वारा इसकी जांच की जाती है। RT-PCR जो MGM मेडिकल कॉलेज में भी होता है और किसी NABL एक्रीडिटेड लैब्स जहां पर है वहां पर भी किया जाता है। उसके द्वारा मालूम पड़ता है कि मरीज को कोविड इन्फेक्शन या कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या नहीं है। यदि है तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ा पार्ट बदल जाता है, मरीज को आइसोलेशन में रख सकते हैं, मरीज के रिश्तेदारों को क्वारंटाइन में रख सकते हैं। आजकल यदि माइल्ड मरीज है और घर पे अच्छी सुविधा है तो घर पर भी रखा जाता है, तो उसका भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं, घर पर आपको रखा जाएगा प्रॉपरली, घर पर ही से आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो एक तो टेस्ट ये होता है। दूसरा कुछ सपोर्टिव टेस्ट भी करे जाते हैं, जैसे एक्सरे चेस्ट करा जाता है और CT स्कैन चेस्ट करा जाता है। इसमें ये मालूम पड़ जाता है इनडायरेक्टली कि इस वायरस ने आपके लंग्स को तो खराब नहीं किया है, क्योंकि यदि लंग्स को खराब किया रहता है तो फिर आप थोड़े सीरियस मरीज की कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, ऑक्सीजनेशन देना पड़ता है और पूरा ट्रीटमेंट चलता है। दूसरे अभी एक और टेस्ट आ गया जिसे एंटीबॉडी टेस्ट कहा जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट वो होता है जिसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है, और इसमें मरीज को पुराने में इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं, मतलब लास्ट कुछ दिनों में उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं, ये जानकारी मिलती है। यदि आपको कोविड इन्फेक्शन पुराना हुआ है तो आपकी बॉडी एक एंटीबॉडीज निर्मित करती है जिसको IgG एंटीबॉडीज कहा जाता है। IgG एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होती हैं। तो यदि ये आपकी बॉडी में आ गए मतलब आप अब इस बीमारी से प्रोटेक्टेड हैं, तो आप अच्छे हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है। तो 60 से 70 मरीजों को, यदि प्रतिशत मरीजों को ये एंटीबॉडीज मिल जाते हैं हमारी कम्युनिटी में, मतलब हमारी कम्युनिटी की इम्यूनिटी अच्छी हो गई है और यह बीमारी अब सीरियस नहीं होगी। ऑल्दो माइल्ड इन्फेक्शन चलते रहेंगे, कोरोना कब तक चलेगा किसी को मालूम नहीं है। कोरोना चलता रहेगा, हो सकता है जैसे स्वाइन फ्लू चल रहा है, डेंगू चल रहा है, उसी तरह कोरोना चलता भी रह सकता है, पर इसकी सीवियरिटी कम होगी, क्योंकि जब तक ये लंबा रूट चलता जाएगा उसकी सीवियरिटी कम होगी और सिम्टम्स भी कम होंगे। इसलिए चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखिए, अपने रिश्तों को बनाए रखिए, क्योंकि रिश्ते भी आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत सहायता करेंगे। क्योंकि आदमी के पास जब सब कुछ होता है तो वो छोटी मोटी इन परेशानियों से तो निकल ही जाता है। तो अंत में तो मैं ये इतना ही कहूंगी कि कोई बीमारी से, इस बीमारी से ना हमें डरना है, इसको हमें साथ लेकर चलना है। जैसे हम अपने सबको लेकर चल रहे हैं वैसे ही हमें इसको साथ लेकर चलना है। बस कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं, वो अभी आपको आगे से डॉक्टर सौरभ मालवीय बताएंगे कि आपको किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लायन डॉक्टर साधना सोडानी। इतना अच्छा आपने यहाँ पर सार गर्भित अपना उद्बोधन दिया। मैं आप सबको बता दूं कि डॉक्टर साधना सोडानी ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं इंदौर मेडिकल एसोसिएशन की। आप बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। साथ ही आप लायंस क्लब इंटरनेशनल की द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी चुनी गई हैं। आप शुरू से ही सभी कामों में आगे रहती हैं और लायंस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप उनमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं अजय सिंह सेंगर, उनकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात पूरी करें, कुछ समय उनको देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे डॉक्टर सौरभ मालवीय की ओर। अजय भैया, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। थैंक यू।
आइए सर, वेलकम। एक्चुअली बीच में जब मैं आप लोगों से कट गया था, मैं माँ पीताम्बरा पीठ पर आज मैं हवन करके आ रहा था। समाज की सुव्यवस्था के लिए, कोरोना पे विजय पाने के लिए मैंने आज पूजन हवन किया, तो मैं रास्ते पे था, इसलिए मैं आप सबसे दूर हुआ। मैंने लोग आज जब मैं अंत में बात कर रहा था, तो मेरा ये कहना है समाज के सभी लोगों से कि हमें डॉक्टर्स की सलाह मानते हुए ज्यादा उत्साही नहीं बनना चाहिए। एक डॉक्टर की सलाह मान कि जीवन कोरोना से अगर ग्रस्त होगा तो हमारा होगा, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। और मास्क की उपयोगिता क्या है, हम लोग अपने पैसे का अहम नहीं पालें कि N95 मास्क लगाना। ये जो मैंने मास्क लगाया है, ये डॉक्टर सुडानी जी के द्वारा मेरे को मास्क दिया गया है। इसको हम 8 घंटे यूज करते हैं और इसको उतार कर हम इसको धो लेते हैं, फिर प्रेस कर लेते हैं। ये मास्क सबसे ज्यादा उपयोगी है। शायद डॉक्टर सौरभ मालवी जी अगर मुझे देख रहे होंगे तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्पीच में जरूर इसका उपयोग करें, क्योंकि हम लोग 3 लेयर मास्क जमाने के बहुत सारे मास्क ले लेते हैं और वो ही कहीं ना कहीं हमें ग्रस्त करते हैं। N95 निश्चित तौर पर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मेरा संगीता जी से अनुरोध है कि मैं अपने स्कूल के बच्चों को प्रेरित करें कि जब तक आने वाले 6 महीने में वे पिज्जा बर्गर इन सब चीजों से दूर रहें। लाइन लीडर्स सोशल मोटिवेटर बनकर अपने क्षेत्रों में काम करें। जिन लोगों के मन में नकारात्मक भाव आ रहे हैं कि हमारा जीवन क्या होगा, हमारा जीवन बहुत चुस्त दुरुस्त होगा, हम सुबह घूमें, व्यायाम करें, योगा करें और चिकित्सक द्वारा बताए हुए नियमों का अनुपालन करें। ज्यादा उत्साह में कहीं हम एक बार आपकी आवाज बहुत कट रही है जी। जी सर, करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इन 3 महीने में कोरोना फाइटर्स, कोरोना वायरस के रूप में बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह करते हुए लायंस क्लब इंटरनेशनल का मान बढ़ाया है। मनिंदर जी, आपको पुनः मुझे जोड़ने के लिए धन्यवाद। साधना जी, हरीश शुक्ल जी, संगीता जी, आपको धन्यवाद कि आपने लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जीवन के साथ जुड़कर एक बहुत महत्वपूर्ण वेबिनार पर आज चर्चाएं की। हम सब एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामनाएं करते हैं। मैंने आज माँ बगलामुखी के चरणों में समाज में व्याप्त नकारात्मक ताकतों के लिए, कोरोना से मुक्ति के लिए हवन किया, पूजन किया। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद जय लाइनबाद के साथ करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखा और हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आप हमेशा से समाज को एक नई दिशा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब मैं डॉक्टर साधना सोडानी ने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया था। अब मैं सौरभ मालवी जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सौरभ मालवी जी का मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देता हूं। सौरभ मालवी जी आई में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं CGP के, उसके बाद सीनियर कंसल्टेंट हैं आप हेड हैं डिवीजन ऑफ र्यूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, और आप सबसे बड़ी बात, आप कलेक्टर इंदौर की कोर टीम में हैं। और अब मैं डॉक्टर सौरभ मालवी जी को यहाँ पर अनम्यूट करता हूँ, वो अपनी बात को आरंभ करें। यस सर। बोलें सर, बोलें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कहता हूँ मैं। धन्यवाद चौनोक साहब जी, वेलकम सर। उपल मैडम, धन्यवाद सेंगर साहब, धन्यवाद सोडानी मैडम। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे आप लोगों ने इस चीज के लिए बुलाया है। ये टॉपिक जो है कोरोना से प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है और इसी पे मेरा प्रयास है कि इसी पे जोड़ दूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे बताया कि हमको जीना है इसके साथ, सभी जुड़ रहे हैं, इनको जीना है इसके साथ, सही बात है, हमें जीना है इसके साथ। थोड़ा अभी आगे समय लगेगा इसके कर्व को फ्लैट आने में। अभी इंदौर में जो हो रहा है वो कर्व थोड़ा फ्लैट हुआ था, लेकिन अब लॉकडाउन हुआ है, खुला है, अनलॉक हुआ है,
तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर से बढ़ेगा, पीक आएगा इसका, और इसका पीक आएगा, सब कुछ कर दिया है तो हमको इसके साथ जीना सीखना है। और हमारे पास इसके साथ इसके लिए 3 हथियार है, वो सबको पता है 3 हथियार, सबने बोला है, प्रधानमंत्री जी से लेके तो हर इंसान को पता है 3 हथियार। और ये 3 हथियार एस है, एस सबको पता है। एस इज फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, एम इज फॉर मास्क, और एस इज हाथ साफ करें। तो ये SMS 3 हथियार है हमारे, और SMS को हम खूब फैलाएं, सबको बताएं कि ये SMS कैसे यूज करना है, कैसे करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सबको पता है कि ऐसे ये हाथ साफ करना है, मास्क यूज करना है और डिस्टेंसिंग करना है, लेकिन फिर भी क्यों फैल रहा है कोरोना, क्यों ऐसा हो रहा है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लेके प्रिंस चार्ल्स से लेके तो बड़े बड़े हेल्थ मिनिस्टर दुनिया के इन्फेक्ट हो गए हैं। इतनी जानें चली गई है, करीब 70 लाख लोग इन्फेक्ट हो गए दुनिया में। इंडिया आज इंडिया पांचवी पोजीशन पे आ गया विश्व में। इतना क्यों हो गया है, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं, हम SMS में चूक कर रहे हैं, हम इन 3 बातों में चूक कर रहे हैं। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना। और मैं सबसे, अगर हमने सिर्फ, मैं बता दूं आपको, अगर हमने सिर्फ हाथ साफ किए, मास्क यूज नहीं किया और डिस्टेंसिंग यूज नहीं की, तो हम 55% कोरोना को बचा सकते हैं फैलने से। अगर हमने सिर्फ मास्क यूज किया, ना हैंड हाइजीन किया, ना डिस्टेंसिंग करी, तो हम 68% को बचा सकते हैं कोरोना से। अगर हमने मास्क प्लस हैंड वॉश किया तो हम 91% तक बचा सकते हैं कोरोना को। और अगर हमने मास्क प्लस हैंड वॉश या हैंड रब या हैंड सैनिटाइजेशन या प्लस डिस्टेंसिंग फॉलो किया, तो हम 98% तक कोरोना को ट्रांसमिशन को बचा सकते हैं। तो आप ये ध्यान से सुनिए, ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको 3 बातें करनी कैसे हैं? तो हम सबसे पहले हैंड वॉश पे आते हैं। मैं इस पे जोर इसलिए दूंगा कि ये तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इन 3 चीज को साथ में लेके आगे बढ़ना है। आपको पता है, जैसे जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं या मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटर चलाना सीखते हैं, तो शुरू में दिक्कत आती है, शुरू में थोड़ा सा ट्रबल होता है कि हम कैसे चलाएंगे, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। अगर हमने सीख लिया एक बार, तो हमारे चांस अच्छे हैं, फिर हमारे टायर में हवा अच्छी भरी है, हमको हमारे ब्रेक अच्छे हैं, तो हमारा एक्सीडेंट होने की चांस कम है। हमारा विजन अच्छा है तो एक्सीडेंट होने की चांस अच्छे हैं, कम है हमारे। ऐसे ही अगर हमने प्रॉपरली इन 3 चीजों को यूज किया, मास्क, हैंड वॉश और डिस्टेंसिंग, तो हमारे कोरोना का इन्फेक्ट होने के चांस कम है। तो अगर हम बात करें हैंड वॉश या हैंड हाइजीन की, तो हम सबसे बेस्ट होता है साबुन, सोप सॉल्यूशन या सोप कोई भी सोप ले लें हम, साबुन वो कोई भी कंपनी का ले लें, वो अच्छा है, बेस्ट है कि हमको जहाँ सुविधा हो हैंड वॉश करने के लिए साबुन से धोएं। 40 मिनट कम से कम हाथ साबुन से धोना होता है, 40 सेकंड कम से कम हाथ साबुन से धोना होता है हमको। और हैंड वॉश अगर इससे करना है तो हैंड रब अल्कोहल सैनिटाइजर से, तो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज करें, कोई भी हो, पीला नीला कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए इसके अंदर। तो अगर हमको हैंड सैनिटाइज करना है तो कम से कम हमको 10 ml लेना पड़ेगा, इसको कम से कम होना चाहिए हमारे पास। और हमको 7 स्टेप्स फॉलो करनी है 10 ml के साथ। पाम टू पाम, palm to back of the hand, finger of the back of the other hand to other palm, thumb, 5 उंगलियां, नाखून सब आखिरी में भूल जाते हैं, ये बहुत बड़ा एरिया होता है इन्फेक्ट होने का। एक 5 उंगलियां मुट्ठी बना ले और नाखून में ले, और बाद में रिस्ट भी कर ले, और अगर साबुन से कर रहे हैं तो कम से कम ऊपर तक कर ले, हाथ तक। और नल बंद करना हो साबुन से धो रहे तो कोने से बंद करें, अगर किसी को बड़ा हैंडल वाला हो, और अगर घुमाने वाला नल हो तो टिश्यू पेपर लेके उसको घुमा दे। ये हैंड वॉश करने का तरीका है। अब हैंड वॉश कब कब करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज को छुएंगे, चाहे मास्क ले पहनना है उसके पहले हैंड वॉश करें, आसपास की कोई सतह को छूना है इसको हैंड वॉश करें। स्कूल शुरू हो रहा है तो बच्चों को अगर बैग लेके आना है तो उसके पहले पकड़ना है, हैंड वॉश करें। गेट खोलना है तो उसके पहले आपको साफ करना चाहिए हाथ। एक आदमी कम से कम 20 बार 1 मिनट में चेहरे पे हाथ लगाता है। आपने चेहरे पे हाथ लगाया 1 मिनट में 20 बार टच करते रहते हैं, तो अगर चेहरे पे हाथ लगा दिया है तो हैंड वॉश करेंगे या हैंड सैनिटाइज करेंगे। ये बार बार करना है हमको, ये ध्यान रखना, दिमाग में बार बार बैठा होना चाहिए कि मैंने टच कर दिया कहीं पे भी
तो हैंड वॉश करना या हैंड सैनिटाइज करना है हमको। आयुर्वेदिक वाले जो होते हैं बने हुए आर्टिफिशियल बने हुए हैंड वॉश, उसको यूज ना करें। जो ऑथेंटिक है 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसको यूज करना है, उसी से हैंड वॉश करें। अब हम बात करते हैं मास्क की। अगर हमने मास्क यूज किया है तो काफी लोग, मतलब कल भी मेरे पास एक मरीज आए, बोल रहे हैं वो 15 दिन से एक N95 मास्क यूज कर रहे थे। N95 मास्क यूज कर बहुत अच्छा होता है, डेफिनेटली 90% प्रोटेक्शन देता है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली यूज किया है हमने प्रॉपर तरीके से तो देता है, ऐसा नहीं देता है वो। तो N95 मास्क पहली बात तो उनके लिए है जो डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट को देख रहे हैं, वो मरीज के रिलेटिव जो कोरोना पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, उनके पास हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। और जो पुलिस पर्सनल जो भी कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए जरूरी है, और किसी के लिए जरूरी नहीं है। हमको, आपको जान के ताज्जुब होगा, मुझे भी मजबूरी में ये मास्क ब्लैक में खरीदना पड़ा। सारे लोग, जितनी दुनिया पागल है इसके पीछे पड़ी हुई है कि N95 मास्क मिल जाए तो हम बच जाएंगे इससे, ये भी बिल्कुल गलत है। मास्क यूज करना आता नहीं है और इसके पीछे पड़े हुए, तो ये मत यूज करें, इसके पीछे आप नहीं जाए। आप अपने सर्वेंट्स को भी बताएं और अपने मिलने वालों को बताएं कि N95 मास्क हम लोगों के लिए नहीं है, हम आम जनता के लिए सबसे बेस्ट है कपड़े का मास्क। कॉटन मास्क यूज कर सकते हैं, वो ट्रिपल लेयर बना हो, घर का बना हो, अच्छा है। बाहर भले थोड़ा सा सिंथेटिक हो जाए, कोई इशू नहीं है, अंदर का लेयर, बीच का लेयर कॉटन का हो, थोड़ा सा 3 लेयर वाला मास्क हो, और वो मास्क पूरा कवर करना चाहिए, नोज से लेके चिन तक, इतना बड़ा हो। मैंने कल तो मेरे को ओपीडी में दिखाने आए और मास्क पहना था इतना, बस इतना से पड़ा हुआ, तो कभी ऊपर नीचे खसक रहा है, कभी नीचे खसक रहा है। तो फुल्ली कवर्ड होना चाहिए, लीक कहीं टाइट बांधा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं बहुत टाइट बांध दिया, टाइट बांधा होना चाहिए ताकि एयर लीक ना करे, एयर भी लीक करती है। तो कपड़े का मास्क यूज करें। कपड़े का मास्क 8 घंटे चल सकता है। सर्जिकल मास्क जो होता है ये वाला, ये मास्क हेल्थ केयर वर्कर यूज करें। ये भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 30-30 रुपए में एक मास्क मिल रहा है, आम पब्लिक इसके पीछे भी नहीं जाए, सिंपल कपड़े का मास्क यूज कर सकते हैं ये भी, लेकिन मास्क 8 घंटे चलता है बस। ये मास्क एक बार पहनने के बाद फेंकना पड़ता है, दोबारा यूज नहीं करें। मेरे पास ऐसे भी पूछा है, मेरे जो सर्वेंट्स है जो वर्क कम्युनिटी के हैं, उनसे पूछा तो 15-15 दिन 20-20 दिन में एक मास्क ये वाला यूज कर रहे हैं वो, जैसे कि ये मास्क बचा देगा पूरी तरह से उनको। ऐसा नहीं है, ये मास्क भी फेंकना होता है। कपड़े के मास्क को गर्म पानी में बाल्टी में साबुन डाला हुआ हो, उसको 8 घंटे का यूज किया तो डाल दीजिए, 15 मिनट साबुन में रहने दीजिए, उसके बाद उसको धोइए। तो एक दिन में 3 मास्क डेफिनेटली होना चाहिए अपने पास, ताकि अगर हम लगातार यूज कर रहे हैं तो उसको चेंज करते रहें। और 5 मास्क का एक सेट हमारे पास बना हुआ, ताकि रेगुलर साफ होता रहे वो। एक बार गंदा हो गया, डर्ट लग गई मास्क पे, तो दोबारा चेंज करें उस मास्क को। सैनिटाइज ना करें मास्क को, सैनिटाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। और खास तौर से N95 मास्क तो बिल्कुल, कल जो मेरे पास एक मरीज आया, उसके घर उसका भाई था, 15 दिन से मास्क लगाया था और रोज धोता था वो मास्क को, और रोज धोने के बाद सैनिटाइज करता था। और पहना कैसा था उन्होंने मास्क, मेरे को तरीका बताऊंगा मास्क का, बट उन्होंने पहना था मास्क को, पहले बता देता हूँ पहनते कैसे। आप इसको होल्ड करें, लगाए पीछे, फिर पीछे ऊपर वाली डोरी ऊपर और नीचे वाली डोरी जो है नीचे, फिर उसका स्ट्रिंग से टाइट कर ले, और एक मेटल पीस लगाए, ये मेटल पीस को यहाँ से चिपका दे ताकि एयर लीक कहीं नहीं होना चाहिए। ये तो N95 मास्क है। अब उन जनाब ने बिल्कुल ढीला पहना था, आपने देखा होगा, आप जाएंगे मार्केट में तो काफी लोग ऐसा देखेंगे, ये लटका हुआ है, यहाँ एयर लीक कर रही है, और ऊपर भी ढीला, उनको ऊपर भी इसको प्रोटेक्शन नहीं, ऐसा था वो। तो क्या N95 मास्क, उनको ऐसा लगता था मैं बस बच जाऊंगा, कोरोना कुछ होगा ही नहीं मेरे को। ये सूडो है, ये फॉल्स इंप्रेशन है, ये गलत है। तो इसको प्रॉपर यूज करना, इसको मैं बोलता हूँ मास्क मेंटेनेंस। मास्क मेंटेनेंस जब तक आपको नहीं पता है तब तक मास्क का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ऐसा काफी लोग छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करें। मैंने इवन कुछ डॉक्टर्स को देखा ऐसा करते हुए। दूसरी बात, मास्क पहनते हैं तो बार बार ऐसा नहीं, ऐसे हाथ नहीं लगाए ऊपर तक। कुछ लोग ढंग से बोल नहीं पा रहे तो मास्क ऐसा कर देंगे, फिर बात करेंगे, ये भी गलत है बिल्कुल, ये डेंजरस है। आपने पकड़ के इसको छू लिया, अब वायरस ऊपर लगाया तो लग जाएगा आपके ऊपर हाथ में, और फिर कभी आपने छू लिया ऐसे हाथ को, गया वायरस अंदर। तो ये बार बार मास्क को बिल्कुल ना छुए, ऐसा करें बिल्कुल नहीं करें। पकड़ना हो तो इससे यूज करें मास्क। आपको डोरी से ही मास्क यूज करना है, डोरी से खोलना है, डोरी से ही मास्क को उतारना है, हमेशा डोरी से उतारे। अगर पानी पीना, कुछ लोग मैंने देखा है पानी पीते हुए मास्क को
लटका लेते हैं और फिर पानी पी लेते हैं। ये भी गलत है। खाना खाया तो खाना है तो लटका लिया गले में, फिर खाना खाया। अगर ड्रॉप खाने गई एक तो गीला हो गया तो मास्क गीला होने तो एक गीली सतह से वायरस बैठने के लिए उस पर वहां बैठ जाएगा। मास्क उतार के अच्छा मास्क की भी निकालने के बाद घर में अगर मास्क रख रहे हैं तो एक चयनी जगह होना चाहिए, वहां कोई हाथ ना लगाए, उस जगह पे मास्क रखें आप। अगर डस्ट ये वाला मास्क यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर डिस्पोज करें उसको। क्लोज डस्टबिन होना चाहिए। ओपन डस्टबिन कहीं भी सबके साथ बीच में डाल दिया नहीं, तो उस पर डालें। ऑफिस में रखें, ऑफिस में रखें। कार में भी एक डस्टबिन हो तो भले उसमें आप डालें। तो ये एक डस्टबिन क्लोज डस्टबिन होना चाहिए। N95 मास्क अगर यूज करेंगे तो ये एक 24 घंटे तक चल सकता है। बनाए एक दिन तक चलता है ये। एक हैंगर में 5 नंबर डाल दीजिए, क्लिप लगा दीजिए कपड़े लगाने की, 1 2 3 4। पहला दिन ये नंबर, दूसरा दिन दूसरा नंबर, तीसरा दिन तीसरा, चौथा, पांचवा, तो छठे दिन पहला नंबर फिर से आ जाएगा। तो ये मास्क हम 25 दिन तक चला सकते हैं, 5 मास्क का सेट। और कपड़े का मास्क तो बेस्ट है ही, जैसे मैंने बताया आपको। अब हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग क्यों इतना 2 मीटर क्यों जरूरी है? पहले 1 मीटर चल रहा था, फिर बाद में कंसेप्ट आया 2 मीटर का, क्योंकि इसके ये ड्रॉपलेट्स 1.8 मीटर तक जा सकता है। जो 5 माइक्रोन से कम होते हैं 1.8 मीटर तक जा सकते हैं, और जो 5 माइक्रोन से ज्यादा होते हैं 1 मीटर तक जा सकते हैं। तो 2 मीटर बहुत जरूरी है डिस्टेंसिंग बनाना। कहीं भी बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, हम भूल जाते हैं जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं, मतलब जैसे हम 2 भाई हैं, अगर बाहर 2 घर में रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि भाई मेरा भाई है, लेकिन रह तो अलग घर में रहा ना। तो सगे भाई के साथ भी डिस्टेंसिंग बनाना है हमको। अगर हम घर के बाहर निकलते हैं तो खास दोस्त के साथ डिस्टेंसिंग बनाना है हमको, अगर मिलते हैं तो। कई लोग भूल जाते हैं। कल ही में मतलब आप नजर उठा लीजिए, रास्ते में चल रहे हो आप, 1 किलोमीटर की दूरी में आपको कम से कम 70% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको क्लोज खड़े हैं, मास्क लटका हुआ है, डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है और बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही फैलता है। आपको ताज्जुब होगा, मैं वर्किंग हूँ, मेरी वाइफ तो में कोरोना वार्ड में भी काम किया उन्होंने, उनका रूम अलग कर दिया था जब वो काम कर रही थी। तो हमने बोला था बच्चों को कि लक्ष्मण रेखा इसके अंदर नहीं आना। अगर बच्चों ने सीख लिया ना, तो इसलिए बता रहा, स्कूल का बच्चे भी सुन रहे हैं, बच्चों ने अगर सीख लिया 3 चीज तो बच्चे बड़ों को सुधार कर देते हैं। अगर हम कहीं गलती से मिस्टेक कर रहे हैं तो बच्चे सुधार देते हैं हमको। मेरी बच्ची रात को उठी थी 2:30 बजे, वो कमरे में नहीं आई मेरे पास, जोर से चिल्लाती रही, पापा आ जाओ मेरे पास, पापा आ जाओ। तो बच्चे कमरे पे लक्ष्मण रेखा, उसने पापा लक्ष्मण। तो बच्चों को सिखा दीजिए। डेफिनेटली मैं सैल्यूट करता हूँ उपल मैडम का, जिन्होंने और लायंस क्लब का जिन्होंने बच्चों के साथ भी सेशन लिया है। बच्चों को सीख जाएंगे अगर, तो बच्चे बड़ों को आप सीधा कर देंगे। तो बच्चों को भी पता होना चाहिए बातें सारी। और बच्चे पापा को बोले, पापा प्लीज आप गड़बड़ कर रहे हो, आप डिस्टेंस मेंटेन करो, आप मास्क ढंग से नहीं लगाया आपने। बच्चे एक बहुत बड़े टीचर बन सकते हैं इस मामले में, बच्चे सब सिखा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा दूसरी बात, ये तीनों बातें तो हो गई हमारी, सोशल डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की और मास्क की, हैंड हाइजीन की। से डरना नहीं है, इसके साथ हम जीना सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। 85% पेशेंट तो अच्छे हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 15% पेशेंट थोड़ा खराब होते हैं, जिसमें से भी मतलब बहुत सीरियस डेथ होती है। अब तो काफी कर्व नीचे आ गया है। तो हम बस डिस्टेंसिंग बनाए, हम ये 3 यूज करें तो हम अच्छे हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्व कैसा भी जाए, कुछ भी जाए। मेरे ख्याल से इम्यूनिटी के बारे में, खासतौर से जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको दिक्कत नहीं होगी। मैं 2-3 चीज और बोलना चाहूंगा कि जो जिनको शुगर है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है घर में, वो उनका कंट्रोल रखें, डॉक्टर को बराबर दिखाएं, अपने फिजिशियन से टच में रहें, वो कंट्रोल रहेगा तो उनको दिक्कत नहीं होगी। घर के बुजुर्ग लोग घर से बाहर ना निकले, बच्चे भी कोशिश करें ना जाए, हालांकि इम्यूनिटी अच्छी होती है। और एक व्यक्ति घर से बाहर जाए, कोई भी घर में एक व्यक्ति डिजाइन चयनित होना चाहिए जो घर से बाहर जाके जो भी सामान लाना है, काम लाना है, वो करे। दूसरी चीज, सैनिटाइजेशन ध्यान रखें। घर के गेट को, जो स्विच बोर्ड्स हैं, रिमोट है, जहाँ डोर हैंडल्स है, जहाँ आप लोग हाथ लगा रहे हैं बार बार, उसको हर 3-4 घंटे में साफ रखें। साबुन के पानी से साफ कर सकते हैं, सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं। जो हाई राइज कम्युनिटी में रहते हैं, लिफ्ट के बटन को भी आप हाथ साफ करके छुए, दरवाजे को। वो कोशिश करें अगर टिश्यू पेपर हाथ में हो, जेब में हो, तो टिश्यू पेपर का यूज करें। कार का गेट आप खोल रहे हो तो कार के दरवाजे को पहले सैनिटाइज कर रखें। अपना छोटा सा सिलेंडर जो होता है उसको जेब में, ऊपर की जेब में रखें हमेशा।
उसको साफ करके उसको सैनिटाइज करें। दूसरी इंपॉर्टेंट पहलू और बताऊंगा आपको मैं कि जो बियरर्स है या जो वर्क जो इनका शॉप है वो भी लाइन मेंटेन करें। लोग भूल रहे हैं, लाइन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंसिंग का पालन करें ऑफिस में और शॉप्स में भी। अब बात आती है अगर घर में कोई सर्वेंट है, आप सर्वेंट यूज कर रहे हैं, सर्वेंट आ रहे घर में, तो आप सबऑर्डिनेट को जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको भी MDH जो SMS जो 3 बातें हैं, ये 3 बातें उनको सिखाएं। पहले उनको ट्रेन करें कि हाँ आपको ये चीज नहीं करनी है, ऐसे जीना है कोरोना के साथ, आपको ये ध्यान रखना है। क्यों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो जीत जाएगा इस प्रॉब्लम से, उसको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे ख्याल से साधना मैडम या सर बताएंगे बयानी सर इम्यूनिटी के बारे में, तो उनको रहने देता, अदरवाइज लास्ट में मैं फिर से बता दूंगा। तो इम्यूनिटी अच्छा रखें। सर एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप जिस तरह से कलेक्टर साहब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उसके बारे में कोई 1-2 लाइन यदि बोले तो, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप काम कर रहे हैं? देखिए हाँ, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम डॉक्टर्स के भी क्लिनिक चलाने से मना कर दिया था, तो टाइम काफी था, मेरा काम करने की आदत है, तो इतना बेकार लग रहा था घर में कि क्या कर रहे हैं। मतलब मैं अपने आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जर्नल्स पढ़ रहा था और राइटिंग वर्क कर रहा था। लेकिन जिस दिन से टीम में आया तो लाइफ मतलब इस बहुत हेक्टिक रही हमारी, काफी हेक्टिक रही हमारी। इनिशियल 6 मेंबर टीम बनाई कलेक्टर साहब ने, उसके बाद हम 9 मेंबर हुए, 10 मेंबर हुए बाद में। हमने अवेयरनेस कोरोना के बारे में हमने खुद ने जाना और जागरूकता फैलाई सब जगह। येलो हॉस्पिटल को स्ट्रांग बनाया, येलो हॉस्पिटल जो संदिग्ध पेशेंट थे। अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको भी सबको कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम हो, कोरोना के सिम्टम हो, तो अपने आप को आइसोलेट कर लें सबसे पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में एक कमरे में रहें और अपने फिजिशियन से या फीवर क्लिनिक पे दिखा दें। तो हमने ये जागरूकता फैलाई कि कोई सस्पेक्टेड पेशेंट हो तो सस्पेक्टेड पेशेंट के रिलेटिव्स को भी आइसोलेट होना चाहिए, उनको भी अलग से कांटेक्ट दूर रहना चाहिए, तभी हम फैला पाएंगे, आप इसको रोक पाएंगे। क्योंकि टेस्ट करने के बाद भी 60% पॉजिटिव आते हैं, 40% फिर भी नेगेटिव आते हैं टेस्ट में। तो सस्पेक्टेड है तो उनको भी कम से कम 14 दिन तक ये प्रिकॉशन रखना है। तो हमने ये येलो हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती होते थे उनके कॉन्टेक्ट्स को भी हमने ऐसा करवाया। और जो मशीनरीज हैं, ऑक्सीजन सप्लाई है, बाईपेप मशीन है, इस पल्स ऑक्सीमीटर है, ये सब सप्लाई को अच्छे से करवाया। कुछ दवाई आती महंगी भी होती जो जान बचाने में बहुत काम आती, कोरोना कॉम्प्लिकेशंस में कलेक्टर साहब ने वो प्रोक्योर करवाई। 50 ऐसे इंजेक्शन जो महंगे आते हैं वो भी समझ। और अस्पताल को स्ट्रॉन्ग बनवाया हम लोगों ने। अस्पताल के अच्छा जैसे कोरोना हुआ तो हाउसकीपिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ने आना से मना कर दिया, अस्पताल आ ही नहीं रहे थे, हमने नौकरी छोड़ दी। उनको हमने लाइन रिक्रूट करवाया, डॉक्टर्स को हमने अस्पताल में लगवाया। और ऐसे करते करते येलो हॉस्पिटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया, सस्पेक्ट पेशेंट को। और धीरे धीरे करके हालत है कि सारे येलो हॉस्पिटल बंद हो गए, इतना अच्छा कंट्रोल हो गया है। और रेड हॉस्पिटल्स ही हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ काम चल रहा है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अच्छे से करवाई, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अच्छे से हुई, सर्वे अच्छे से हुआ, सर्वे के ऊपर काम किया गया। मेरे ख्याल से आप सबके घर में भी कहीं ना कहीं सर्वे टीम आई होगी। 5.5 लाख घर का सर्वे हुआ है और सर्वे में पूछा गया है कि सिम्टम्स किसी को तो नहीं, ये सब बातें सारी की है। और मेरा सजेशन है कि आरोग्य सेतु ऐप को भी आप डाउनलोड करें जिसने नहीं किया है, और किसी को सिम्टम आ रहे हैं तो उसको बताएं, या आप किसी को जानते हो जो सिम्टम छुपा रहा है, उसका नाम उसके बारे में भी डाल दीजिए उस ऐप में। सिम्टम छुपाए नहीं तो जितने जल्दी आएंगे पेशेंट, हमने अगर फैला इस बात में मिलके कि जल्दी रिपोर्ट करें, जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे। शुरू में डेथ बहुत हाई हो रही थी, पेशेंट आया डेथ हुई या ब्रॉड डेथ आए, तो हमने अवेयरनेस फैलाया कि नहीं जल्दी आएंगे तो हम जल्दी इलाज कर पाएंगे। जैसे मैडम ने बताया हैप्पी हाइपोक्सिया, जी हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम हो जाना, पता ही नहीं पड़ रहा, ऑक्सीजन एकदम कम हो गई, तो इसीलिए डेथ हो रही थी। तो सिम्टम कुछ भी हो रिपोर्ट करें जल्दी, और हम इससे काफी कुछ कंट्रोल कर लिया है अवेयरनेस करके और सर्वे करके। नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया है और नगर निगम ने वीडियोस बनवाए, मैंने सुपरवाइज किया सारे वीडियोस बनवाए उस हिसाब से हमने, और रेडियो जिंगल्स बने, काम किया। और मैं आपको बता दूं हमारे कलेक्टर साहब बहुत इंदौर बहुत ही बेनिफिट हो रहा है उनके काम से, और वो नहीं होते तो इंदौर न्यूयॉर्क बन जाता। बहुत बढ़िया था, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने रियली। हाँ आगे मैं बंद करता हूँ इस बात को लेके, इम्यूनिटी अच्छा रखें, स्ट्रॉन्ग करें,
हैंड हाइजीन का ध्यान रखें और बच्चे बड़ों को सिखाएं, वेरी गुड, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं कुछ भी क्वेश्चन आंसर में बात करेंगे अपन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लायन डॉक्टर सौरभ मालवीय, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को हमारे सामने रखा और रियली ऑल पेरेंट्स, सभी लोग इससे बहुत बेनिफिटेड होंगे। ये बहुत जरूरी है कि हमें प्रिकॉशन लेना है। हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं मास्क को लेके, सैनिटाइजर को लेके और हाथ धोने को लेके, इन सब का हमें बहुत ही सिंसियरिटी से पालन करना है। हम सिर्फ दिखावे की वस्तु ना बन जाएं, हम उसका सिंसियरिटी से पालन करें। क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए अब मैं ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए अब मैं हमारे शहर के, इंदौर शहर के और पूरे मध्य प्रदेश के बल्कि रिनाउंड ENT स्पेशलिस्ट लायन डॉक्टर जवाहर बिहानी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात को हमारे सामने रखें। सर, आपको अनम्यूट किया है, आप अपनी बात चालू करें सर। बोले सर। धन्यवाद मनिंदर। Yes, एक बहुत अच्छा अवेयरनेस ड्राइव चालू किया है, जिसके तहत हम लोग मुखातिब हो रहे हैं समाज के अलग अलग तबके की तरफ, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम कोरोना से बच सकते हैं और किस प्रकार से हम कोरोना के साथ में लड़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है और जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी मानसिक संत्रास है, ये इन सब चीजों से हम किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम नई चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम अनलॉक थे, हम लॉक थे, हम घरों के अंदर थे। घरों के अंदर रहते हुए हम लोगों ने अपनी जीवनचर्या जो है हमने बदल ली। हमारे जो रोज की दिनचर्या थी उसमें हमने काफी परिवर्तन लाया। हमने ये देखा या हमने ये किया कि हमने हमारे समय का, जो हमने घर में रहकर हमारे पास में समय ही समय था, उसका हमने किस प्रकार से उपयोग किया है। तो हर एक विधा के व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से उसका उपयोग किया है। मैंने उस समय का उपयोग इस प्रकार से किया है कि हमारे ENT एसोसिएशन के कई वेबिनार होते थे, वेबिनार अटेंड करते थे, कुछ ज्ञान मिलता था, साथ ही कुछ किताबें पढ़ी, साथ ही कुछ मोटिवेशनल चीजें करने का मौका मिला, साथ ही कुछ वेबिनार करने का मौका मिला और कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाए। मतलब मैंने अपना समय पढ़ने लिखने में, क्रिएटिविटी में और परिवार के सदस्यों के साथ में व्यतीत किया। मनिंदर जी, मैं चाहूंगा कि मेरे को स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दें। आपको कमांड दी गई है सर, आप आगे। यस सर। दिख रही है सर, बहुत बढ़िया दिख रहा है। इसको फुल स्क्रीन कर दें। हाँ ठीक है सर। ये पता नहीं क्यों आ रही है लकीरें, आपको दिख रही हैं क्या लकीरें? हाँ दिख रही हैं सर। ये मालूम नहीं मुझे कहाँ से आई हैं, पर ओके, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दिस हैज हैपेंड। मैं फिर से इसको करता हूँ। हाँ, ये गायब हो गई हैं। हाँ। तो जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और इन उतार चढ़ाव के साथ में हम अपना जीवन आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार का एक समय हमारे बीच में आया है कि हम पिछले 2-2.5 महीने से हमारे घरों में थे और अब धीरे धीरे हम जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी रहता है। किस प्रकार से रहना है यह हमें सीखना चाहिए, किस प्रकार से ये चीजें आनी चाहिए ये हमें सीखना है और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम घरों में रहकर हमने हमारे समय का उपयोग किया है, ठीक उसी प्रकार जो है हम अब जब अनलॉकिंग चालू हो रहा है तो उसमें किस प्रकार से कार्य करना है ये हम देखेंगे। तो साथियों, एक चीज जैसे अभी हम देखते हैं कोरोना, कोविड-19 कोरोना ये वायरल फ्लू है। अगर हम इसका नाम कोरोना फ्लू रहता तो शायद आप लोगों को इतना डर नहीं लगता,
क्योंकि फ्लू से आप बहुत एकस्टम्ड हैं और ये फ्लू हमेशा हमारे जीवन में कई बार हमें होता रहता है। ये चीज कोरोना वायरस बहुत पुराना है, आया पहली बार है। अब इसके अलग अलग बातें हो सकती हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जो है इसके साथ में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आइए हम अपना ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाएं, हम अपने जीवन में किस प्रकार से उत्साह का वातावरण रखें, इसकी ओर कुछ अग्रसर होते हैं। कुछ टिप्स जरूर आपको दूंगा और आपको यह महसूस होगा कि यह उतना खतरनाक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आइए हम पहले स्लाइड को देखते हैं कि मैंने यह देखा कि रोज 6000 मृत्यु दिल की बीमारी की वजह से होती है। डेली 6000 डेथ्स बिकॉज ऑफ द कार्डियक प्रॉब्लम्स। रोज की 1000 से ज्यादा, करीब 1100 डेथ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, टीबी की वजह से होती है। 1400 डेथ कैंसर की वजह से पर डे होती है। ये एक्सीडेंटल डेथ जो है 410 डेथ, ये 2018 का आंकड़ा है। 410 डेथ एक्सीडेंटल डेली हुआ करती है। और कोरोना से अभी तक पिछले 90 दिनों में, या 90 से भी कम दिन थे, करीब 90 डेथ्स पर डे हुई हैं। कल शाम तक की फिगर 6642 थी, जो आज 7000 के करीब पहुंच गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इतना डरने की आवश्यकता नहीं है जितना मन में भय व्याप्त हो गया है। साधना जी ने अपने बोलने में एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जिसको आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि प्रॉब्लम कम है, लेकिन एंजाइटी हम लोगों में ज्यादा है। मैंने कई लोगों को यह देखा है कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन केवल गले में खराश है या गले में दर्द है या सिंपल कभी सर्दी हुई होगी, केवल इन चीजों को लेकर इतना मन में भय व्याप्त हो गया कि उनको यह लगने लगा कि शायद उनको कोरोना हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जांचें करते हैं तो प्रिलिमिनरी जांचों में हमें कहीं पर भी इस प्रकार के सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। मुझे पता नहीं ये अलग अलग डिजाइन क्यों बन रही है। दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, पहली बार हो रहा है ये कभी हुआ नहीं आज तक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, पर दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्लाइड। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी स्क्रीन शेयर बंद करके फिर से चालू करता हूँ। जी। अब हमें जो है आने वाला समय, अगले 6 महीने में हमें कैसे रहना है, क्योंकि अनलॉक 1.0 चालू हो गया है। अब इसके बारे में बहुत अच्छी बातें डॉक्टर सौरभ ने बताई हमें कि भले ही लॉकडाउन समाप्त हो जाए, लेकिन हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और ये सावधानी क्या क्या हो सकती है? एक तो मास्क के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई, अगर आपके पास में N95 मास्क है, इसको आप धो देंगे तो ये किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए 6 मास्क रखें, 6 मास्क अलग अलग डिब्बे में रखें या टांग के रखें, व्हाटएवर। तो आज जो मास्क पहना है उसको 6 दिन के बाद में पहने, तो उसके ऊपर अगर कोई कीटाणु आया भी है तो इन 6 दिनों में खत्म हो जाएगा। अपने हाथ को धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें, सामाजिक दूरी बराबर बना के रखें। सामाजिक दूरी के बारे में भी डॉक्टर सौरभ ने बहुत अच्छी बातें बताई। और अगर मैंने और मेरे सामने वाले ने दोनों ने मास्क पहना हुआ है तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के चांसेस कम रहते हैं। 1 मीटर से फिर भी हम थोड़ा सा ज्यादा दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी हो तो घर के बाहर जाएं। अगर जरूरत नहीं है, अननेसेसरी घूमने के लिए या शहर में वातावरण कैसा है ये देखने के लिए या शहर की फिजा कैसी है ये देखने के लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कि समय के साथ में ये 2-2.5 महीने में हमारे में कितना परिवर्तन आया। हमने ये महसूस किया कि कितनी सारी चीजें हमारे को आवश्यक नहीं है और हम
जबरदस्ती उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे जीवन में उन चीजों को हमने ले आए थे। बात करते करते जब ये बात चल रही थी कि हम पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीजों से पिछले 2-2.5 महीनों से दूर है, आइसक्रीम, इन सब चीजों से दूर है। ये हमें जरूरत नहीं लगी, हमारा जीवन बहुत अच्छा चला। फिर क्यों जब अनलॉकिंग शुरू हो रहा है या बाद में नॉर्मलाइज होगा, तब भी हम इनके ऊपर क्यों जाएं? इनसे हम अगर दूर रहेंगे, जंक फूड के बाद हमारे गवर्नर कह रहे थे, अगर हम इनसे दूर रहेंगे तो हम बहुत अच्छे रह सकते हैं। घर का भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। दाढ़ी न बढ़ाएं। कई लोगों ने घर में बैठे बैठे सोचा कि मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, तो ये दाढ़ी न बढ़ाएं। हेयर कटिंग सैलून में अभी न जाएं, क्योंकि यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा परेशानी वहां पर हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे फिर भी वे दुकानें भी खुलेंगी और पूरे तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ये सारी चीजें बाद में होती रहेंगी। उसमें यूज होने वाले कंघी, कैंची, ब्लेड, ये सब जो है सैनिटाइज होने चाहिए, या सब हम हमारे सामान लेके जाएं और काम करवाएं, ये भी हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप 7वें नंबर पे देखें, बेल्ट नहीं पहने, अंगूठी नहीं पहने, कलाई पर घड़ी नहीं पहने, इसके ऊपर वायरस बैठ सकता है और इन चीजों के ऊपर वायरस करीब 7-7 दिन तक रहता है, इसलिए इन चीजों को नहीं पहने। मैं पिछले 2-2.5 महीने से 3 महीने से न घड़ी पहनी है, न अंगूठी है मेरे पास में, बेल्ट पहना नहीं। वैसे भी घर में बैठे बैठे मेरा शायद वजन बढ़ गया है, तो आजकल पैंट के लिए मेरे को बेल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इन चीजों का उपयोग नहीं करें। सौरभ ने आपको बताया कि हाथ रुमाल का उपयोग नहीं करें, उसके बजाय हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जूते पहनकर प्रवेश न करें, क्योंकि हम उसके साथ में ये जब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नीचे जमीन पर गिरते हैं और हो सकता है हमारा पांव उसके ऊपर रहे और हम वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन लेकर घर के अंदर प्रवेश कर जाए। इसलिए जूते बाहर उतारें, घर में अंदर आने के पहले हाथ और पांव धोकर घर के अंदर प्रवेश करें। यह सबसे अच्छी चीज रहती है। यदि आपको लगता है कि आप किसी प्रकार के किसी संदिग्ध के संपर्क में आ गए हैं, तो हम घर आके स्नान कर लें, और स्नान करने से शरीर के ऊपर अगर कोई वायरस है तो वो निकल जाएगा। मुझे याद है कि जब शुरुआत हुई थी और लॉकिंग हुआ था, तो हमारी ड्यूटी एक येलो जोन हॉस्पिटल में चालू हुई थी। तो जिस दिन मेरे को ड्यूटी पे जाना था, उसके पहले दिन जिस डॉक्टर से जिस डॉक्टर ने ड्यूटी की थी, उसको मैंने पूछा कि भाई तूने क्या किया, किस प्रकार से अपने आप को सेफ रखा, तो और घर आने के बाद में क्या किया। तो जिस प्रकार हॉस्पिटल में कैसे करना वो तो उन्होंने बताया, और घर आने के बाद में ठीक वैसे ही करना चाहिए जैसे हम स्मशान घाट पे कहीं मैयत में जाने के बाद में घर आते हैं, ठीक वैसा का वैसा ही हमें घर पे आकर करना चाहिए। तो मेरी यह दिनचर्या अवश्य है कि घर पे आने के बाद में सबसे पहले नहा लेता हूँ। हमारे कपड़े जो है साबुन के पानी में गला के रखें, आधे घंटे तक साबुन के पानी में गला के रखेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये इस प्रकार की छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से अपनानी चाहिए। ये अगर अपनाएंगे तो हम काफी इन चीजों से दूर होते जाएंगे और परेशानियां नहीं रहेंगी। दो दशकों पहले, 2.5 दशक के पहले एड्स की बीमारी आई थी, हम लोग घबराए थे, लेकिन हमें अब समय के साथ में मालूम पड़ गया है कि क्या कारण है, किस प्रकार से हम बच सकते हैं। तो अब हमें उतनी परेशानी हमें महसूस नहीं होती है। स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, डेंगू आया, हमें घबराहट हुई, लेकिन फिर भी हमने समय के साथ में जीना सीखा है। आज भी यही है कि समय के साथ में हम जीना सीखेंगे और हाथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। कंधे से कंधा मिलाने का मतलब ये नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे। मेरा मतलब है कि हम सभी लोग इस प्रकार का सभी सावधानियां बरतते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे तरक्की भी करते जाएंगे।
ये एक बहुत अच्छा है, आई हैव मेड माई डे। तो मेड माई डे, इसको मैंने स्पेसिफाई किया है कि एम से मेंटल रिलैक्सेशन। मेंटल रिलैक्सेशन के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम हमारे जीवन को जॉयफुली, सुंदरता के साथ में, शांतिपूर्ण वातावरण में किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं, इसकी बातें अब हम शुरू कर रहे हैं। तो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, छोट-छोट एक्सरसाइज कर सकते हैं, कच्ची पर हम जाकर घूम सकते हैं। इस प्रकार की चीजों से हम अपने आप को मेंटल रिलैक्सेशन कर सकते हैं। हम परिवार के साथ में बातें करते हुए भी अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे अवॉइड एडिक्शन, इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को मालूम है किसी भी प्रकार का एडिक्शन बहुत अच्छी बात नहीं होती है। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम डाइट के ऊपर जितना ध्यान देंगे, जितना हम अपना डाइट अच्छा रखेंगे, उतनी इम्यूनिटी हमारे शरीर की बढ़ती जाएगी। हमारे शरीर में इम्यूनिटी होनी चाहिए, विटामिन सी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, विटामिन डी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और हमारा भोजन, पौष्टिक आहार हम जिसको कहते हैं, वो पौष्टिक आहार हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, हम वीक नहीं रहेंगे इंटरनली, और कोई भी संक्रमण से हम बच सकते हैं या हम उससे लड़ सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि सब्जियां अगर आती है तो किस प्रकार से करना चाहिए। तो हमारे घर में हम सब्जियां लेते हैं, तो सब्जी लेने के बाद में हम घर के अंदर उसको पानी से धोएं, नमक के पानी में थोड़ी देर भिगो के रखें, फिर सादे पानी से धो लें, तो मेरा ख्याल है दिस इज सफिशिएंट, उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये करने के बाद में या सब्जी लाने के बाद में भी हम अपने हाथ अवश्य रूप से साबुन से धोएं, 20 सेकंड साबुन से धोना है। मनिंदर सिंह जी यहाँ पर मॉडरेट कर रहे हैं, आपको बहुत मजेदार तरीके से इस प्रकार से है अपना हाथ धोना है, ये वो आपको बताएंगे, और वो जरूर आप लोग देखिएगा। एक्सरसाइज जो है, मैंने अभी बताया कि मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है, और शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है। ये 4 चीजें हम रोज करते जाएंगे, तो जब शाम को हम अपने बिस्तर पर, रात को अपने बिस्तर पे जाएंगे, हम ये कह सकते हैं कि आई हैव मेड माय डे। एक कंसेप्ट है, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, और इसको मैं प्रोपोगेट कर रहा हूँ कि हम जो है, जब अनलॉकिंग हो रहा है तो हम लोग सड़कों पर निकल आ रहे हैं। पहले जब कोरोना की परेशानी नहीं थी और हम लोग ट्रैफिक में जाते थे, आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि किस प्रकार से रफली हम चलते थे, किस प्रकार से कई जगह पर, कई समय पर विवाद होते थे, लोग हमें, हमारी ओर आंखें दिखाते थे या हम लोगों की ओर आंखें दिखाते थे। तो अब समय वो नहीं है। तो अगर हम सड़क पर निकलते हैं तो हमें ये देखना है कि हम अगली कार के बीच में या अगले मोटरसाइकिल से कुछ सेफ डिस्टेंस रख कर चलें, ताकि कभी अचानक ब्रेक भी लगाना पड़े, हम सामने वाले को न टकराएं या पीछे वाला हमसे न टकराएं। धीमे चलें, यातायात को नियमों का पालन करें। धीमे इसलिए चलना है कि कभी कोई गलती से किसी तरफ से घुस आया, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर कुछ भी परेशानी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो आप देख रहे हैं चित्र में कि किस प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और ये जरिया रह सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। आपको है तो उसको हो जाएगा, उसको है तो आपको हो जाएगा। तो हम इन चीजों से बचकर चले। हम अपने चेहरे पर गाड़ी चलाते वक्त, कोई सी भी गाड़ी चला रहे हो, 2 व्हीलर चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, एक अगर हल्की सी मुस्कुराहट रखते हुए चलेंगे, हमारा दिमाग बहुत शांत रहेगा और हम अपनी ड्राइविंग बहुत सेफली कर सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि इंदौर में तो हम लोगों ने कई बार देखा है कि कितनी परेशानी ट्रैफिक में होती है, इसलिए हम धीरे चलें, जल्दबाजी में नहीं चलें। सड़कें कई बार खाली मिलती हैं तो भी अपन जल्दी ना चलें, हमेशा स्लोली चलें, कांस्टेंट स्पीड से चलें और डिस्टेंस बनाते हुए चलें, यह मेरा निवेदन है। और रॉन्ग साइड से न चलें,
मोटरसाइकिलें रॉन्ग साइड से आती है, हमें उनके साथ में भी विवाद नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, हम अपना चुपचाप आगे निकल जाएं, विवाद की स्थिति बिल्कुल पैदा न करें। जी 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 सर। मैंने कहा चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, क्योंकि स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पीपल। हम चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे, हमारा मन अच्छा रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा, हम दूसरे के मन को अच्छा कर सकते हैं। हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी तो सामने वाले को यह लगेगा कि इसके पास में बहुत अच्छी चीजें हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हमारे को दे सकता है, और हमारी मुस्कुराहट देख के सामने वाले के चेहरे पे भी या उसके मन में भी प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो सकता है। और इसके लिए किसी ने कहा है कि 3 अच्छी बातें हम किसी के बारे में बात करें। आपने पिक्चर देखी होगी जय हो, जिसमें यह कहा कि किसी ने आपको अगर मदद की है तो आप 3 और लोगों की मदद करें, उन्हें थैंक यू बोले। इस प्रकार की बातें जो प्रोपोगेट करनी है, हम किसी के बारे में 3 अच्छी बातें अगर बोलें तो निश्चित रूप से उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस कंसेप्ट को लेकर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसके साथ में जीना चाहिए। सर अभी परसों डॉक्टर भरत रावत जो है इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि कॉफी के बारे में स्टोरी बता रहे थे। तो कोई कॉफी का मग लेकर जा रहा था, उसको धक्का लगा या जो भी हुआ तो कॉफी उसके मग से छलक गई। उन्होंने प्रश्न किया कि कॉफी ही क्यों छलकी? उसका उत्तर भी उन्होंने दिया क्योंकि मग्गे में कॉफी थी इसलिए छलकी। अगर आपके मन में प्रसन्नता है तो प्रसन्नता छलकेगी, आपके मन में क्रोध है तो क्रोध बाहर निकलेगा। तो हम अपने मन को जितना शांत रखेंगे, अपने मन को जितना प्रसन्न चित्त रखेंगे, वही चीज हम लोगों के साथ में बांटते चले जाएंगे, वही चीज हमारे पास से छलकेगी और वही भाव दूसरे के मन में पैदा होंगे। सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सर। ओके, हम जो है इस कोरोना को बोझ लेकर न चले। ये बोझ लेकर अगर चलेंगे, बोझ के नीचे हम दब जाएंगे। एक फ्रांसिस एरेगो की कहानी है। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट रहे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं, लेकिन ये जब बचपन में अत्यंत गरीब परिवार के थे और ये बनना चाहते थे एस्ट्रोलॉजिस्ट, लेकिन गरीब इतने थे कि बुक बाइंडर के यहाँ पे काम करते थे। जब वो बुक बाइंडर के यहाँ पे काम करते थे तब उन्हें बुक बाइंडिंग करते करते एक कागज ऐसा मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था, चलते चलो जनाब, बढ़ते चलो। जो कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी ये तुम्हारी तरक्की के साथ में सुधरती जाएंगी। बढ़ते चलो, उजाला हो जाएगा। मैं भी आपको कह रहा हूं, बढ़ते चलो, उजाला निश्चित रूप से होने वाला है, लेकिन संकल्प शक्ति के साथ में। एक आखिरी में छोटी सी कहानी, मनिंदर जी 5 मिनट का समय, मैं 5 मिनट भी नहीं लूंगा, कम समय में। एक गुरुकुल में गुरु शिष्य के साथ में बातचीत हो रही थी। शिष्य ने कहा, गुरु से प्रश्न पूछ रहा था कि गुरु जी, सबसे ज्यादा ताकतवर जो है पहाड़ होता है, लेकिन पहाड़ को लोहा काट देता है, लोहे को अग्नि गला देती है, तो अब सबसे ज्यादा स्ट्रांग या सबसे ज्यादा मजबूत क्या हुआ? अग्नि को जल बुझा देता है तो जल मजबूत हुआ। जल को सूर्य जो है वाष्पीकृत कर लेता है, जल को उड़ा देता है, तो क्या सूर्य सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ? सूर्य को बादल ढक देते हैं तो बादल ताकतवर हुए। बादल को वायु जो है अपने वेग के साथ में प्रवाहित कर लेती है, इधर उधर ले जाती है, तो क्या वायु सबसे ज्यादा ताकतवर हुई? तब गुरुजी ने जवाब दिया कि नहीं शिष्यों, सबसे अधिक ताकतवर अगर कोई चीज है तो यह मनुष्य की संकल्प शक्ति है। इस संकल्प शक्ति के साथ में असंभव कार्य को संभव करने की शक्ति होती है। हम पहाड़ को लोहे से काटकर सुरंग और रास्ते बना सकते हैं, लोहे को गलाकर अस्त्र शस्त्र बना सकते हैं, अग्नि को काबू में ला सकते हैं या ला रहे हैं, जल और हवा का रुख मोड़ सकते हैं,
इसलिए संकल्प शक्ति जो है सबसे अधिक शक्तिशाली है, जो असंभव को संभव करने का मद्दा रखती है, असंभव को संभव कर सकती है। और आखिरी में एक स्लाइड और दिखा रहा हूं कि मैं चूंकि एक चिकित्सक हूं, मरीज देखना मेरा पेशा है, जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। अनलॉकिंग के साथ में हमने भी हमारी क्लिनिक चालू की, लेकिन हमने पूरी प्रिकॉशन लेकर किस प्रकार से हम क्लिनिक में कार्य करते हैं, उसका यह एक नजारा है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए मरीजों को भी स्वास्थ्य प्रदान करें, स्वस्थ रहें वे सभी लोग, ये हम देखते हैं। तो साथियों, जीवन में हमेशा अपना संयम रखकर, धैर्य रखकर, केयर करके, अपना ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। निश्चित रूप से उजाला आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद लायन डॉक्टर जवाहर बिहानी। आपने बहुत अच्छी तरह से हमको लिव केयरफुली एंड जॉयफुली उसके ऊपर बात की। दोस्तों, समय हो गया है और अंत में जिसका डॉक्टर बिहानी जिक्र कर रहे थे, ये कोरोना तो अभी आया, पर मैं शुरू से आज पिछले 5 से 7 सालों से मैं ये कहता आ रहा हूं कि हमें हाथ धोने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मित्रों, यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम हाथ धोने के लिए पर्टिकुलर नहीं है। हम हाथ धोना एक जिसको कहते हैं कि एक बहाना करके देखते हैं, एक फॉर्मेलिटी करते हैं, जबकि मैं हमेशा से कहता हूं हाथ अच्छा धोइए। और हाथ धोने के लिए, जिसको अभी मैंने कई जगह बोला है और अभी महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा साहब ने भी ट्वीट किया था कि जब भी आप हाथ धोएं अपने मन में कुछ बोलें, क्योंकि जैसे डॉक्टर सौरभ मालवीय ने आपको बताया कि कम से कम 40 सेकंड हाथ धोना चाहिए। कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि 20 से 40 सेकंड हाथ धोना चाहिए। मैं 20 सेकंड मानता हूं। यदि आप 20 सेकंड भी हाथ धोते हैं अच्छी तरह से, तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरा लक्ष्य करीब 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का है। मैं 1 करोड़ लोगों को जागरूक करना चाहता हूं हाथ धोने की कला को, और 20 सेकंड को नापने के लिए आप अपने मन में बोल सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप हैप्पी बर्थडे बोलिए, अपने किसी भगवान का नाम लीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पर मित्रों, धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आपने इतना अच्छा सुना। और अंत में मैं प्रिंसिपल मैडम को वापस आमंत्रित करता हूं आभार प्रदर्शन के लिए। श्रीमती संगीता उप्पल अब आभार प्रदर्शन करेंगी। हमारा समय हो गया है। जी मैडम, आपको मैं हाँ प्लीज बोलिए। Thank you, Lions Club, first of all, once again. बहुत सारी चीजें मैंने सीखी आज। ये मास्क वाली चीज आई वॉज ऑल्सो वेरी वेल अवेयर। थैंक यू डॉक्टर सॉलिंगस। हमें लगता था कि मास्क लगा लिया तो शायद चेहरा छुप गया तो कोरोना भी छुप गया, शायद वो वैसी बात नहीं है। और बहुत बहुत आभार है मन से, हृदय से डॉक्टर सुडानी का, हमें बताने के लिए कि किस तरह से हमें डरना नहीं है और आगे बढ़ना है। और डॉक्टर बिहानी तो हमेशा ही मोटिवेशनल रहते हैं, हम उनकी बातें सुन सकते हैं बहुत टाइम्स तक, और वो किस तरह से उसको डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ते हैं, यही खूबी उनके अंदर बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन ये प्रयास अभी यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे हमको ले जाना है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि एक बार जब स्कूल फिर से शुरू होंगे, जब हम एक स्कूल स्टार्ट करेंगे, तो फिर मैं चाहूंगी कि लायंस क्लब की टीम जो है एक बार फिर से स्कूल में आके बच्चों को जागरूक करें, क्योंकि जैसे डॉक्टर मालवीय ने कहा कि बच्चों को अगर हम तैयार कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो बच्चे हमारे सबसे बड़े वॉरियर्स हैं हमारे साथ इस समय, जो हमको आगे पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच लायंस क्लब फॉर मेकिंग अस ऑल अवेयर अबाउट द न्यू नॉर्मल, द न्यू वे ऑफ लिविंग एंड नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ कोरोना वॉरियर। और दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सेंगर जी का, जो उन्होंने इसको पॉसिबल बनाया, मनिंदर सिंह जी चंडोक जी का, कि वो इतने अच्छे मॉडरेटर हैं कि इतने अच्छे से बगैर सीमलेसली सब प्रोग्राम हो गया, और सब पेरेंट्स का और टीचर्स का जो इससे जुड़े,
बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you once again for doing this program for the Millennium School. I'm truly indebted and full of gratitude. जय थैंक यू हिंद. वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. सभी पेरेंट्स को मेरा सैल्यूट, सभी बच्चों को मेरा सैल्यूट. बेटा सभी लोग मिलकर हम कोरोना को हराएंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे. एक बार फिर से मुलाकात होगी. मैडम, प्रिंसिपल मैडम हमको फिर से मौका देंगी. थैंक यू वेरी मच. और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे. थैंक यू. Thank you.